Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In our previous lecture, we learned how a real world problem can be converted into a search problem. Like हमने actions के बारे में देखा, हमने initial state के बारे में देखा, then we learn about transition models, about path cost, about action cost, about the goal states. Now, but the main question is इन चीज़ों को कैसे map करना है through real world AI problems, right? So in this lecture, we'll take some standard AI problems and then हम formulate करेंगे each of the above things जो हमने discuss करी थी in the previous lecture as a search problem. So let's begin. Now, कोई भी AI problem जब होती है, जब हम उसको problem को formulate करते हैं, then it consists of each of the things. It consists of states, it consists of initial state, actions, transition model, goal test, and the action cost. Now we are going to use this exact same framework for every problem that we study. So let's first begin with the standardized problems versus real world problems. So इसका हमने थोड़ा सा introduction देखा था in our last video. The standardized problem क्या होते हैं? That has a clear, well-defined formulation. Like for example, the vacuum problem होगी, या the 8 puzzle problem हो गया, the grid world problem और the mathematical problems. क्योंकि यहाँ पे जो rules होते हैं, they are clearly defined, हम उनको use कर सकते हैं. We can use these problems to test and compare the search algorithms. The next comes the real world problems. Real world problems क्या होते हैं? Problems that actually occur in our real life. Like these are problems, for example, जैसे route finding problem हो गया, airline travel planning हो गया, traveling salesman problem हो गया, robot navigation हो गया, VLSI layout हो गया. So these are actually more complicated because the real world में बहुत सारे additional constraints होते हैं, details होती हैं that we need to keep in mind जब भी हम उन real world problems को solve करने के लिए कोई भी AI architecture को design करते हैं. So let's first begin with the first problem, that is the standardized problem, that is the vacuum world problem. Now what is the vacuum world problem? The vacuum world problem says, तो इसके बारे में हमने already discuss किया था when we discussed about the agents and environment in our previous videos. So vacuum world problem says कि हमारे पास दो rooms हैं, जो vacuum cleaner agent है can be in either of the rooms. हर एक रूम के दो स्टेटस हो सकते हैं, कैन बी आइदर क्लीन और डर्टी. एजेंट का जॉब है टू क्लीन ऑल द रूम्स. नाउ लेट्स सी कैसे हमें वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. So let's first identify each of the components. The first component is the states. स्टेट्स हमें क्या बताता है? स्टेट हमें दो चीजें बताती हैं. सबसे पहला दैट की एजेंट कहां पे है, वेयर इज द एजेंट. And the second thing it tells us that which rooms are dirty. Right? Like for example, let's assume कि जो हमारा दो rooms हैं, एक left room है और एक right room है. This is left, this is right. जो मेरा vacuum cleaner agent है currently is in room number left. तो agent का current status क्या हुआ? That it is in left room. Left room में क्या है? Let's say it's dirty. This is indicating dirt. So status of left room is indicating dirty and right room is clean. तो दिस इज वन ऑफ द स्टेट. ऐसी बहुत सारे हमारे पास स्टेट्स हो सकते हैं कि एजेंट कौन से रूम में है, लेफ्ट रूम डर्टी है या लेफ्ट राइट रूम डर्टी है, लेफ्ट रूम क्लीन है या फिर राइट रूम क्लीन है. राइट. सो देयरफॉर अनदर स्टेट कैन बी कि एजेंट लेट्स से मेरा राइट रूम में, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई कैन रिप्लेस इट विद लेट्स से राइट. लेफ्ट रूम लेट्स से मेरा क्लीन है एंड मेरा राइट रूम जो है वो डर्टी है. So in that case, this image will be modified like this. This is indicating agent and this is indicating the dirt. So this is another state. अब अगर मैं if I ask you कि ऐसे कितनी states possible है, तो हमारे पास क्या है? दो possible agent locations है. Two possible agent locations like left and right. And each of the two rooms जो है they can be independently be either clean or dirty. तो दो मेरे पास agent locations हैं left right. Each of the rooms can either be clean or dirty. एंड एक्शन क्या लेना है उसके ऊपर? एक्शन एजेंट क्या लेगा? जैसे ही वो डर्ट देखेगा तो वो डर्ट को सक करेगा. तो बेसिकली आई हैव 8 पॉसिबल स्टेट्स. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सपोज एजेंट जो है करेंटली लेफ्ट रूम में है.
इफ द एजेंट इज करेंटली इन लेफ्ट रूम तो वो क्या देखेगा कि यार लेफ्ट रूम क्लीन है या फिर क्या लेफ्ट रूम डर्टी है। अगर लेफ्ट रूम उसको क्लीन मिलता है तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए कि वो राइट में मूव कर जाए, और अगर राइट डर्टी मिलता है उसको लेफ्ट रूम तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए दैट इट हैज टू सक द डर्ट। सिमिलरली अगर एजेंट जो है वो राइट रूम में है तो उसके अगेन एक्शन क्या होगा, सबसे पहले वो देखेगा कि राइट रूम क्लीन है या डर्टी है। अगर क्लीन है तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए, मूव लेफ्ट, और अगर डर्टी है तो उसका एक्शन होना चाहिए सक द डर्ट, राइट। तो एजेंट की एक तो हो गई इंडिविजुअल लोकेशन की वो लेफ्ट है या राइट है, देन लेफ्ट या राइट में क्या उसका स्टेटस है, क्लीन है या डर्टी है, एंड अगर क्लीन है तो उसको क्या करना है, एंड डर्टी है तो उसको क्या करना है, अगेन टू एक्शंस। So possibly there are 8 possible states in which an agent can reside at any point of time. 8 possible states. तो स्टेट ऑफ द एजेंट से सिर्फ हम ये डिस्क्राइब नहीं करते कि एजेंट की करंट लोकेशन क्या है, स्टेट किसी भी एजेंट के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन बताती है विच इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट इज रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन प्रॉब्लम, ट्रांजिशन स्टेट्स, गोल स्टेट्स, इन सब का क्या मतलब है इन कंटेक्स्ट ऑफ अ वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले लेट्स फ्रेम द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जो होती है इट कैन बी एनी ऑफ द पॉसिबल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल एजेंट को अगर हम ले लेते हैं, करेंटली दिस इज माय लेफ्ट रूम, दिस इज माय राइट रूम, एजेंट इज करेंटली इन माय लेफ्ट रूम। तो एजेंट की करंट इनिशियली कहाँ पे है, वो लेफ्ट में है। लेट्स से स्टेटस ऑफ लेफ्ट रूम इज ऑल्सो डर्टी एंड स्टेटस ऑफ राइट रूम इज ऑल्सो डर्टी। तो लेफ्ट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग डर्टी, right is also indicating dirty. Let's say this is my starting state. Now क्या क्या actions हम ले सकते हैं इस vacuum world problem में। सबसे पहला action हम left move कर सकते हैं, that means move the agent to the left. हम right move कर सकते हैं, that is move the agent to the right. And हम suck का action दे सकते हैं, clean the dirt from the current cell. तो मेरे 3 actions हैं, actions, this is my initial state. My actions can be left, right and suck. These are my 3 actions. The next is the transition model. ट्रांजिशन मॉडल का मतलब है क्या होता है व्हेन द एजेंट परफॉर्म्स एन एक्शन। जैसे एजेंट ने एक्शन परफॉर्म किया उसके बाद स्टेट के अंदर क्या चेंज आया। फॉर एग्जांपल अगर मेरी करंट स्टेट इज एजेंट इज लेट्स से लेफ्ट, लेफ्ट इज डर्टी, तो हमने जैसे ही लेफ्ट को डर्टी देखा और एजेंट भी लेफ्ट में, तो हम उसको क्या एक्शन देंगे, दैट सक द डर्ट, राइट। तो जो मेरी न्यू स्टेट में ट्रांजिशन हो जाएगा, न्यू स्टेट आफ्टर performing this suck action, that will be agent will be in left only, but left का instead of dirty क्या हो जाएगा, clean. So the transition model tells us what state results after an action is performed. Now let's come to the next, which is the goal state or the goal test. गोल स्टेट होता है कि हमारा गोल क्या है, तो एवरी हमारा गोल है दैट एवरी सेल शुड बी क्लीन, राइट। तो गोल टेस्ट क्या चेक करेगा कि क्या लेफ्ट रूम क्लीन है, अगर उसको आंसर मिलता है यस, एंड फिर वो चेक करेगा क्या राइट रूम क्लीन है, उसके लिए भी अगर उसको आंसर मिलता है यस, देन वी से दैट द गोल इज अचीव्ड, बोथ द रूम्स आर क्लीन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द एक्शन कॉस्ट। नाउ एक्शन कॉस्ट क्या करती है, एक्शन कॉस्ट असाइन करती है एक कॉस्ट टू ईच ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म। लाइक फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट मूव करना है तो इसको हम कॉस्ट दे देते हैं एक्शन कॉस्ट एज 1। अगर राइट मूव करना है तो इसको मैंने एक्शन कॉस्ट दे दी 1। अगर डर्ट सक करनी है तो इसको अगेन एक्शन कॉस्ट दे दी 1। देयरफॉर मेरा जो एजेंट होता है वो क्या लेता है, सबसे पहले वो देखेगा, वो चेक करेगा अगर राइट रूम उसको डर्टी मिलता है देन इट विल परफॉर्म द एक्शन सक, देन लेफ्ट में मूव कर जाएगा, देन चेक करेगा क्या डर्टी है या क्लीन है, अगर डर्टी मिलता है देन अगेन इट विल सक। तो 3 एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट डर्टी मिला सक किया, देन लेफ्ट में गए लेफ्ट डर्टी मिला अगेन सक किया। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, द टोटल कॉस्ट इज माय 4,
राइट। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट रीचिंग द गोल, इट इज अबाउट एफिशिएंटली रीचिंग द गोल। कि ऐसा नहीं है हमें सिर्फ दोनों रूम्स को क्लीन करना है, हमें दोनों रूम्स को एफिशिएंटली क्लीन करना है। दैट इज माय एक्शन कॉस्ट। नाउ लेट्स लुक एट अ डायग्राम। तो इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम हम क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे हर एक स्मॉल पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक स्टेट को, राइट। जो लाइंस हैं वो इंडिकेट कर रही है मेरे एक्शंस को, दैट इज लेफ्ट, राइट एक्शन एंड दी सक एक्शन, राइट। तो नाउ लेट्स से सबसे पहले आते हैं इस वाले सेल पे। तो अभी हमने क्या देखा, एजेंट जो है वो मेरा लेफ्ट में है, जो मेरा लेफ्ट रूम भी डर्टी है, राइट रूम भी डर्टी है। हम लेफ्ट में ही रहे, अगर लेफ्ट में ही रहे तो दिस सेल्फ लूप एरो इंडिकेटिंग कि एजेंट लेफ्ट में ही है करंटली। लेफ्ट में ही अगर करंटली, तो वो क्या करेगा, डर्ट देखेगा, डर्ट को सक कर लेगा। तो इसने क्या एक्शन दिया, सक एक्शन दिया, एंड वी रीच दी नेक्स्ट शीट। अब एजेंट जो है सक करके जो लेफ्ट रूम है वो क्लीन हो गया, राइट रूम जो है वो डर्टी है, तो एजेंट क्या कर जाएगा, अब मूव कर जाएगा, अब सक करेगा टू दी, इट विल मूव टूवर्ड्स दी राइट साइड एंड उसकी डर्ट को सक करेगा। तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं एजेंट जो है वो राइट में मूव कर गया। अब हम उसको एक्शन देंगे सक करने का, एजेंट ने सक किया एंड वी रीच दिस स्टेट जहां पे अब मेरा एजेंट राइट रूम में, राइट रूम की डर्ट भी क्या हो चुकी है, सक हो चुकी है। अगर हम इस वाले एक्शन पे आते हैं कि एजेंट जो है वो लेफ्ट में ही रहा, देन लेफ्ट में उसने डर्ट देखी, उसने इमीडिएटली एक्शन लिया कि राइट में जाके देखते हैं, तो वो राइट में चला गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एजेंट जो है वो राइट में आ गया, उसने डर्ट देखी, डर्ट देखी, उसने क्या किया, डर्ट को सक किया। हम इस वाली स्टेट पे आ गए, सक किया, लेफ्ट रूम जो है वो ऑलरेडी डर्टी है, अब वो क्या करेगा, अब लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में देखेगा डर्ट है, उस डर्ट को क्या कर लेगा, सक कर लेगा, एंड इट विल रीच दी दिस स्टेट एंड इवेंचुअली we can see both the rooms are clean. So how many shades do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are 8 different shades. जो edges हैं that means these they indicate कर रहे हैं कि action मुझे perform करना है लेफ्ट का, राइट का या फिर सक करने का। और ये जो पाथ है थ्रू द ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ एक्शन हमने क्या लिए। जैसे हम लेफ्ट में, एजेंट लेफ्ट में ही है, वो लेफ्ट में ही रहा, डर्ट को सक किया तो हम लेफ्ट में ही रहे, डर्ट को सक किया, राइट में गए, राइट में एजेंट ने डर्ट को सक किया and we eventually reach this sheet. So this is indicating the sequence of actions that we took. Let's take another example. So example 2 is of a Sokoban puzzle. So Sokoban puzzle एक तरीके की grid wall problem होती है, इसको भी example से समझते हैं. The next is the Sokoban puzzle. Now imagine a warehouse. This is a warehouse. एजेंट को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में, इस वाले सेल में एक बॉक्स है, राइट। एजेंट यहाँ पे है, ये इसका गोल है। तो एजेंट क्या करना है, एजेंट को मूव करना है बॉक्स को टू दी स्पेसिफाइड लोकेशंस, राइट। बट स्पेशल रूल यहाँ पे क्या है, जो एजेंट है वो सिर्फ बॉक्स को पुश कर सकता है बट इट कैन नॉट पुल दी बॉक्स, राइट। सो दिस मेक्स द प्रॉब्लम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। नाउ लेट्स से अगर एजेंट ने पुश करके बॉक्स को एक कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया, द बॉक्स इज इन दिस कॉर्नर नाउ। So now because of the rule कि हम सिर्फ बॉक्स को पुश कर सकते हैं, we cannot pull it, now the agent gets stuck, right? So कोई भी एक्शन जो है that is possible physically may create a state from which the goal becomes impossible. This was my goal, but क्योंकि हम एक कॉर्नर में stuck हो चुके हैं, so the goal can never be reached. So this is the Sokoban puzzle problem. So puzzle problems या grid world problems हो गई, ये sometimes it can be difficult to achieve a task that is the goal. Let's look at a third example. The next is the 8 puzzle problem. So 8 puzzle problem is also one of the most interesting problem in the standardized problem. 8 puzzle problem. Now the 8 puzzle problem consists of 8 number tiles. ये मेरे पास एक grid है, 3x3 का board है. And there is just one blank space, एक ही blank box होगा, and बाकी सब में क्या होंगे, numbers होंगे. Let's say here we have number 1, 1, 3, 8, then 5, then 6, then 7, 2, 4, right? Now the initial state, ये जो मेरी this is my initial state shown in here. अब मेरा इससे मेरे को गोल क्या अचीव करना है, मुझे गोल जो अचीव करना है दैट इज कि इन टाइल्स को हमें इस तरीके से शिफ्ट करना है
that I get this as my final state. हमारे पास 8 नंबर टाइल्स होंगी 1 से 8 तक, एक ब्लैंक स्पेस होगा मेरे पास, एंड देयर विल बी 3x3 ग्रिड दैट इज अवेलेबल. नाउ इस स्टेट से, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, इस स्टेट से मुझे रीच करना है इस स्टेट तक. दिस इज माय गोल स्टेट, दिस इज माय इनिशियल स्टेट. अब जो भी मेरी ब्लैंक टाइल है, ब्लैंक टाइल को हमें इस तरीके से शिफ्ट करना है ताकि मेरी जो फाइनल पोजीशन है वो ये अचीव हो जाए. तो हम कैसे कैसे मूव कर सकते हैं? हम या तो 2 को डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, या 5 को इधर मूव कर सकते हैं, या 6 को इधर मूव कर सकते हैं, या फिर 3 को ऐसे मूव कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉसिबल एक्शंस दैट आई कैन टेक. तो अगर हम इसको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करें, तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है, गोल हमें पता चल गया. क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं कि हम ब्लैंक को मूव कर दें, या तो लेफ्ट, या फिर राइट, या फिर अप, या फिर डाउन. ये मेरे पॉसिबल एक्शंस है. एक बार जैसे जैसे हमने कोई भी एक्शन लिया, उसके बेसिस पे हमारा जो मॉडल है, रिजल्टिंग स्टेट, वो चेंज होता जाएगा. दैट विल गिव मी दी ट्रांजिशन मॉडल. तो जैसे ही हमने ब्लैंक स्पेस को लेट्स से मूव करा, हमने 2 को ऐसे डाउनवर्ड मूव कर दिया, तो अब क्या होगा, जो मेरी रिजल्टिंग ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, 2 यहाँ पे आ जाएगा, एंड ब्लैंक विल गो अपवर्ड ओवर हियर. So this becomes my new state after applying the particular action. देन हर एक एक्शन के साथ हमारे साथ क्या क्या एसोसिएटेड होती है, एक एक्शन कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है. एक्शन कॉस्ट मुझे क्या बताती है कि हम जितनी बार टाइल्स को मूव करेंगे, वो मेरी एक्शन कॉस्ट डिनोट करती जाएगी, एक्शन कॉस्ट ऑफ 1. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20 मूव्स करे अपनी गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो मेरी पाथ की क्या कॉस्ट हो गई, 20. नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम में हम क्या क्या कर सकते हैं. हम टाइल को पिक कर सकते हैं, हम स्लाइड कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं. हो सकता है हमने बोर्ड को एक्सीडेंटली मूव कर दिया, या पजल को हमने शेक कर दिया. बट ये सारे एक्शंस को हम फिजिकली मॉडल नहीं करते हैं. इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था वन टर्म दैट वाज अबाउट एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या था, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है जितनी नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बाकी क्या क्या फिजिकल एक्शंस इस पे हो सकते हैं, उन सबको हमें मॉडल करने की जरूरत नहीं है. तो इट ओनली नीड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ सर्च प्रॉब्लम इज द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. तो सर्च प्रॉब्लम्स डोंट हैव टू ऑलवेज इन्वॉल्व फिजिकल लोकेशंस. अगर कोई मैथमेटिकल टाइप की प्रॉब्लम है विच इन्वॉल्व्स पॉजिटिव और इंटीजर्स हो गया, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जैसे स्क्वायर रूट, फ्लोर, फैक्टोरियल, देन दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व यूजिंग द सर्च प्रॉब्लम. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरी इनिशियल स्टेट है, माई इनिशियल स्टेट इज बेसिकली अ नंबर, एंड मेरी गोल स्टेट क्या है कि मेरे को अचीव करना है 5. अब मेरे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लाइक फ्लोर ऑपरेशन, द स्क्वायर रूट ऑपरेशन, द फैक्टोरियल ऑपरेशन, और इन ऑपरेशंस को यूज करके हम न्यू स्टेट्स को जनरेट करेंगे, एंड फाइनली हम अपने गोल तक पहुंचेंगे विच इज 5. तो द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि स्टेट्स हमेशा फिजिकल लोकेशंस नहीं होती, एक्शंस हमेशा फिजिकल लोकेशंस नहीं होते. एक्शंस हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, एंड स्टेट जो होती है वो हमारे सिर्फ एक नंबर को भी डिनोट कर सकती है, लाइक इन दिस एग्जाम्पल. तो यहाँ पे मेरी इनिशियल स्टेट है 4, मेरी गोल स्टेट है 5. हम एक्शंस क्या क्या ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं दैट वी कैन परफॉर्म अंडर रूट ऑपरेशन, स्क्वायर रूट ऑपरेशन, वी कैन परफॉर्म द फ्लोर ऑफ एक्स, and we can perform the factorial of x wherever whichever action is applicable. ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला, दैट विल बी माय ट्रांजिशन मॉडल. लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने ये ब्रैकेट में 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करा. सो 4 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे, सो आई विल गेट द आंसर एज 24. सो दिस इज माय ट्रांजिशन स्टेट. देन गोल स्टेट हुआ 5 को पहुंचना, विच इज माई डिजायर्ड पॉजिटिव इंटीजर जो मुझे अचीव करना है. एंड एक्शन कॉस्ट का इंडिकेट करेगा, एक्शन कॉस्ट की हर एक ऑपरेशन को अप्लाई करने की जो एक्शन कॉस्ट है दैट इज 1. So this is how we can solve a mathematical problem.
तो सर्च स्टेट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी अ फिजिकल लोकेशन, चाहे वो कोई सिटी हो सकती है, कोई पजल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, कोई रोबोट का की पोजिशनिंग हो सकती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर. नाउ वन मोर थिंग वी कैन नोट ओवर हियर इज कि जब हमने 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करा वी गेट द आंसर एज 24. नाउ here we have to solve 24 factorial and then हमें उसका लेना है अंडर रूट, राइट. एंड दिस 24 factorial is such a big number. तो जो स्टेट स्पेस है इट कैन बिकम एक्सट्रीमली लार्ज और इवन इनफाइनाइट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम जो हम उससे सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, right. So in this particular scenario my state space will become extremely large and it can even become infinite. So that is why intelligent search algorithms हमारी necessity हो जाती हैं और ज़्यादा, ताकि हम इन search problems को efficiently solve कर पाएं. Now let's discuss some of the real world problem. The first real world problem is the real world root finding problem. Now real world root finding problem हमने already इसका basis देखा था when we discussed about the Riemannia example when we were discussing the search problems. So real world root finding problem is much more complicated than the Riemannia example जो हमने देखा था. It says suppose अगर if I am traveling from Delhi to Mumbai, right? तो कौन-कौन सी information ऐसी है that might matter? First, I need to know the current location, then destination, then available roads क्या-क्या है, traffic कैसा है, travel time क्या रहेगा, road closures कहाँ-कहाँ पे हैं, what are the toll charges, fuel consumption, weather, road conditions. तो ये सारी information matter करती है अगर हम कोई भी route finding problem को define कर रहे हैं and we have to travel from one destination to another destination. Let's come to another problem which is the airline travel planning problem. Now, airline travel planning problem है, let's say if I have to travel from Delhi to New York. Now, हम सिर्फ इस प्रॉब्लम को इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते कि मेरी करंट सिटी क्या है. इफ आई एम डूइंग अ एयरलाइन ट्रैवल प्लानिंग प्रॉब्लम, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट आई नीड द करंट लोकेशन. देन आई ऑल्सो नीड द करंट टाइम. Then I also need what are the available flights at that time. Then I need information about the previous flights. Then कौन सी एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे हैं. Then connection time. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मैटर्स जब भी हम इस टाइप की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे टाइमिंग इतनी ज़्यादा मैटर क्यों कर रही है? टाइमिंग मैटर इस वजह से कर रही है. लेट्स से सपोज फ्लाइट ए है कोई, फ्लाइट ए अराइव्स एट द एयरपोर्ट एट 4 PM, राइट. अब जो उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो लीव करिए लेट्स से एट 3:30 PM. तो इन दैट केस यू कैन नॉट टेक दैट कनेक्टिंग फ्लाइट. तो दैट इज वाई स्टेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट वी कैन मेक करेक्ट डिसीजंस. So that is why real world problems are a slightly more complicated to solve. Now it's airline problem को हम let's say formulate करते हैं. Let's understand कि हमारी current state में क्या क्या चीजें होंगी. First we have states. Now state में include कि मेरी current location क्या है प्लस करंट टाइम क्या है प्लस रेलिवेंट ट्रैवल हिस्ट्री और एनी अदर इंफॉर्मेशन. अब इनिशियल स्टेट क्या होगी? इनिशियल स्टेट दैट द यूजर्स स्टार्टिंग एट द एयरपोर्ट, दैट इज माय इनिशियल स्टेट. देन उसके बाद हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? एक्शंस हम ले सकते हैं दैट टेक एन अवेलेबल फ्लाइट फ्रॉम द करंट लोकेशन. जो भी मेरी करंट लोकेशन है टेक एन अवेलेबल फ्लाइट. नाउ ट्रांजिशन मॉडल क्या डिफाइन करेगा? ट्रांजिशन मॉडल डिफाइन करेगा दैट आफ्टर टेकिंग द फ्लाइट हम कौन से डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे पहुंचे. तो करंट एयरपोर्ट वॉज माई इनिशियल स्टेट. हमने फ्लाइट ली यहाँ पे, एक्शन लिया एंड देन वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट. Let's say it's to a different country, so the time zone is also different. Destination airport plus new time.
This is my transition model after taking this action. The goal is to reach the destination. अब एक्शन कॉस्ट क्या क्या होगी मेरी? एक्शन कॉस्ट विल कंबाइन कि मेरी टिकट प्राइस क्या है, देन टाइम की टर्म्स में देखें तो हमने वेटिंग टाइम कितना किया, देन फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या थी, देन कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस हमने चेंज करे, क्या हमें इनकन्वीनियंस हुई, all that will be termed as in the category of action cost. So cost doesn't always necessarily mean in terms of money. It also means in terms of time. It also means in terms of distance. It also means in terms of convenience or the inconvenience cost during the flight. So वो सारी चीजें भी action cost के अंदर contribute करती हैं. Let's take another famous example of the traveling salesman problem. Now, traveling salesman problem is one of the classic problems जिसको हम almost बहुत सारे subjects में देखते हैं. इसको हम algorithms में भी देखते हैं when we study about NP hardness, and we are studying it about in the artificial intelligence also. तो traveling salesman problem क्या कहती है? Let's say एक salesman है जिसको visit करना है suppose दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता एंड चेन्नई. सेल्समैन को हर एक सिटी को विजिट करना है. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज फाइंड अ टूर दैट विजिट्स every required city and returns to the starting city while minimizing total cost or distance. तो सेल्समैन को हर एक सिटी को ट्रैवल करना है एंड देन वापस से उसी सिटी पे आना है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, बट द गोल इज उसको ये सारा काम कम से कम कॉस्ट एंड कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करके अचीव करना है. So now why is this traveling salesman problem a bit difficult to solve? Why is TSP difficult? To understand this, let's take an example. Suppose अगर हमारे पास few cities हैं to travel करने के लिए, तो number of possible orders जो है वो still manageable है, but जैसे जैसे number of cities मेरी increase होती जाती हैं, तो उसको travel करने के लिए जो मेरे possible tours हैं वो भी extremely rapidly बढ़ते जाएंगे. Like for example, अगर 4 cities हैं जो salesman को travel करनी है, they are relatively manageable to travel with minimum cost and distance. अगर 10 cities हैं देन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि हमें गोल हमारा है कम से कम कॉस्ट एंड कम से कम डिस्टेंस के साथ हमें उन सारी सिटीज को ट्रैवल करना है. जैसे नंबर ऑफ सिटीज और बड़ी, लेट्स से 50 सिटीज हुई या लेट्स से 100 सिटीज हुई, देन दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इनॉर्मस टू सॉल्व, क्योंकि हम हर एक, हमारे लिए इतना फिजिबल नहीं है कि हम हर एक रूट को पॉसिबली ट्राई करें when the problem becomes so large and consists of so many cities. So this is exactly why search and optimization problems and techniques play an important role. Optimization techniques are important to consider. Let's take another example. Let's say the VLSI layout problem, that is very large scale integration problems. The next problem is the VLSI problem, that is very large scale integration problem. तो क्या मतलब है इसका? So basically these type of problems involve जहाँ पे हमें डील करना होता है with designing chips containing huge number of components and connections. Like example, suppose कोई chip है. Now a chip containing a component A, a component B, component C. अब हमें डिसाइड करना है कि कहाँ कैसे components को हमें प्लेस करना है, हाउ शुड दे बी कनेक्टेड, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं टोटल वायर लेंथ को, हाउ कैन वी अवॉइड अननेसेसरी क्रॉसिंग्स, how can we fit everything into limited chip space. So that is why this becomes a search and the optimization problem. क्यों ये सर्च और एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है? बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबल लेआउट्स हो सकते हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, राइट, एंड एआई एंड सर्च एल्गोरिथम को यूज करके हमें डिजाइन करना है द बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन. लेट्स फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मिनिमाइज करना है वायर लेंथ को वाइल सेटिस्फाइंग माई डिजाइन कंस्ट्रेंट्स. तो अगेन मुझे सारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस को सर्च करना पड़ेगा in order to design a good optimal layout that uses the minimum wire length. So that is why this becomes a search problem. Let's consider the last example, that is on robot navigation. So suppose imagine a robot which is moving around a building. Now the robot has to reach the goal without hitting the obstacle. Like let's say this is indicating an obstacle. ये robot की current position है and this is the goal where the robot has to reach.
Now, why this problem is a particularly harder than the simple grid problems? Because grid problems क्या होती थी, उसमें हमें simply बताना होता था कि हमारे क्या क्या actions हो सकते हैं. It involves moving up or moving down. Like क्या हम यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, left जाना है, right जाना है. But a real robot may have many problems like उसके बहुत सारे joints होंगे, wheels होंगे, sensors होंगे, motors होंगी, obstacles होंगे, right? So for a robotic arm, for example, the state may include कि इस एंगल को एंड इस एंगल को ज्वाइन करो, ऐसे लेग्स को मूव करो, ऐसे हैंड्स को मूव करो. So this state space can become a bit high dimensional. So that is why real robots, they also have a lot of uncertainty. Like for example, real robot may say कि I commanded him to move 1 meter away. बट परहैप्स उसके या तो व्हील्स हो सकता है किसी वजह से स्लिप हो जाए, या फ्लोर अनइवन हो, या सेंसर ने इनएक्यूरेटली इंफॉर्मेशन को कैच नहीं किया हो. सो दैट इज वाई रियल रोबोट नेविगेशन प्रॉब्लम हैज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज एज वेल, जिसको हमें सबको इंक्लूड करना होगा अगर हमें इस टाइप की सर्च प्रॉब्लम को डिजाइन करना है तो. लेट्स समराइज सारी प्रॉब्लम्स को जो जो हमने अभी डिस्कस की हैं. So we first discussed about the standardized problem, which was the vacuum world problem, the 8 puzzle mathematical problem. तो इन सारी प्रॉब्लम में हमारी स्टेट क्या थी? वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम में द स्टेट इज एजेंट प्लस क्या डर्ट कॉन्फ़िगरेशन है. एक्शंस क्या हम ले सकते हैं? दैट वेदर वी कैन मूव लेफ्ट, राइट एंड सक द डर्ट. देन द गोल इज दैट ऑल सेल्स शुड बी क्लीन. द सेकंड वाज द 8 पजल प्रॉब्लम, जहाँ पे था हमें टाइल को अरेंज करना था. देन एक्शंस क्या क्या हम ले सकते हैं? मूव अप, डाउन, लेफ्ट और राइट. बेसिकली ब्लैंक को मूव करना है इन एनी ऑफ द पोजिशन. एंड गोल क्या है? जो भी डिजायर्ड अरेंजमेंट तक हमें पहुंचना है, दैट इज माई गोल. देन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसमें स्टेट क्या है? मेरी नंबर और एनी पर्टिकुलर वैल्यू. देन एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस. एंड गोल क्या है मेरा? दैट टू रीच द टारगेट वैल्यू. देन द रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, जिसमें मेरी स्टेट क्या थी? करंट लोकेशन. एक्शन क्या है? दैट आई हैव टू ट्रैवल अलोंग रोड्स एंड रीच माई डेस्टिनेशन. एयरलाइन प्लानिंग में क्या है? लोकेशन प्लस टाइम, ऑल दीज आर माई स्टेट्स. एक्शंस क्या क्या लेने हैं मुझे? दैट आई हैव टू कैच द फ्लाइट एंड रीच माई डेस्टिनेशन इज माई गोल. TSP problem में current city plus visited cities is my state. Travel to another city is the action that I have to take, and goal is visit all cities in the stipulated time with stipulated time and distance. Then VLSI layout, component placement क्या है? मेरी state है. Modify करना layout को, वो मेरा action है. And good optimal layout is my goal. Robot navigation में robot configuration और location is my current state. Actions that I can take, that means movement or actions of the robot through his arm or through his leg. Then reach target safely, that is my goal. So now what is common among all these completely different problems, चाहे vacuum world हो, चाहे 8 puzzle हो, चाहे mathematical problem हो, robot navigation हो, कि इन सारी problems को हम formulate कर सकते हैं as current state. Then what possible actions I can take? What are the new states जो हमें मिलेंगे after taking the desired action? What am I searching and what is my goal? So that is the central idea of all the search problems, whether it is standardized problem or whether it is real world problem. Standardized problems में बस क्या होता है? हमारी problems जो होते हैं वो much more simple होती हैं, well defined होती हैं, structured होती हैं, and they are easy to represent as in all these problems. But in real world problems हमारे पास बहुत सारे constraints आ जाते हैं, more realistic details हो जाती हैं, state spaces हमारे बहुत ज़्यादा large हो जाते हैं. Often it is mixed with a lot of uncertainty. So that is why real world problems are slightly difficult to solve and they require much more search and optimization as compared to the standardized problems. So another important question that we consider is that why search algorithms are needed. तो इमेजिन लेट्स से अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है टू सॉल्व, इस प्रॉब्लम के लिए आई हैव वन पॉसिबल स्टेट, मेरे पास एक पॉसिबल स्टेट्स भी हो सकती है इसके लिए. आई कैन हैव 3 possible actions. After taking the 3 possible actions, the number of states increases. I have 9 possible states now. Then on those 9 possible states, again 3 different actions. Again, I get different set of states, let's say 27 possible states. And so on, this keeps on increasing. So the number of possibilities can grow very rapidly.
दिस इज वाई हम सिंपली ये नहीं कह सकते किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि हर एक पॉसिबल स्टेट को पहले चेक करो. फॉर मेनी प्रॉब्लम्स इट बिकम्स वेरी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव और इम्प्रैक्टिकल एज वेल कि अगर हम सारी पॉसिबल स्टेट्स को कंसिडर करना चाहेंगे. So that is why search algorithms are needed and search algorithms are necessary, ताकि हमें पता चल पाए कि AI को कौन सी स्टेट्स को सबसे पहले एक्सप्लोर करने हैं. So that's exactly जो हम आगे search algorithms में पढ़ेंगे when we will discuss about the BFS problem, the DFS problem, then uniform cost search, then greedy search, A star. All these search problems will answer this question कि हमें कौन सी स्टेट्स को सबसे पहले एक्सप्लोर करना है. So in this video we have seen कि how completely different problems को हम solve कर सकते हैं using AI problems, and it's not about always solving a problem or finding a path to solve a problem. Sometimes we also have to assign values to different variables while satisfying a number of constraints. So this is exactly that we will see in our next video, which is on constraint satisfaction problems. If you are finding this AI series helpful for your college or university studies, make sure you subscribe to Nikita Jain Insights and don't miss the upcoming lectures. You can also follow me on Instagram at Nikita Jain Insights and Learn with Nikita Jain, where I regularly interact with students and take up their doubts and questions. Thank you for watching, and I'll see you in the next lecture on constraint satisfaction problems. Keep learning, keep practicing, and keep exploring AI.